Hello friends, good morning. I am Chintan Joshi from Nalanda Vidyalay, Virpur Morbi, and in this subject Business Studies, we are discussing chapter number 5. Actually, we have completed total 4 topic, or rather I say four and half topic, right? These topics are introduction, concept and definition of organizing. We have discussed already, as well as we have discussed the process of organizing. We have discussed the importance of organizing. We have discussed about structure of organizing. Into that structure of organizing, we have discussed about functional structure of organizing, right? So we can say that we have completed 4.5 topic up to now, and today we are going to discuss about divisional structure of organization, and with this we are going to and we are going to close our fifth topic in video series, right? So let me start our today's discussion, guys. As we have discussed yesterday about the structure of organizing, let me recall that organizational structure is a framework within which the managerial operational tasks are performed, right? So it was yesterday's discussion about what is organizational structure. After that, we have already seen that there are two types of organizational structure. Number one, that is a functional structure, as well as number two, that is a divisional structure. We have discussed about the functional structure, right? And today we are going to discuss about the divisional structure. Let me see what is divisional structure. Over here, divisional structure, right? Divisional structure is an organizational structure compressing of separate business unit or divisions. What is divisional structure? Divisional structure is an organizational structure compressing of separate business units or divisions. Right? Then next, usually divisional structure is created on the basis of different products, geographical area, customer groups, etc. How it is created? It will be created on the basis of different kind of products or geographical area or customer groups, etc. This type of structure is devised by business firms when they are dealing in different categories of products. Over here we have to remember the keyword, that is, while a business is dealing in different categories of products. I repeat, while business is dealing in different categories of products, right? So we can say that whenever a business is dealing in different categories of products, or they are located in different geographical areas, or they may have the different customer groups, at that time organization is going to adopt a divisional structure of organization structure, right? For example, Samsung, Reliance, etc. It helps in coping with the emerging complexities due to diversification of products, right? What is diversification of products? Diversification of products simply means that one organization or a company is producing lots of different product range, right? Let me discuss divisional structure in continuity. It is a divisional structure. The various departments or divisions are created on the basis of different products manufactured by the enterprise. As we discussed earlier, that in divisional structure, different departments or divisions will be created on the basis of different products manufactured by the enterprise. In each department or division, different functions like production, purchase, finance, sales, etc. are performed in order to achieve organizational goals. Guys, let me clear two separate things over here. First of all, we have seen that one company will create divisional structure considering the different products they are manufacturing.
right? So different department or divisions will be created. Now into that individual separate division or department, again different functional structure will be created according to the functions of the managerial activities, right? And these might be production, purchase, finance, sales, etc. So guys, over here I would like to say that divisional structure will have different departments, and the different departments will have again functional structure that yesterday we have discussed. Now are you getting my point, right? Let me discuss the further in detail so you will get clear cut ideas. Over here, each division has a divisional manager who is responsible for the working of his division and has full authority over it. हर एक डिपार्टमेंट या डिवीजन में एक अलग से डिविजनल मैनेजर जो है वो असाइन किया जाएगा, जो उसके डिवीजन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उस डिवीजन के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और उसी के साथ उनके पास उस डिवीजन के लिए फुल्ली अथॉरिटी जो है वो रहेगी। In each department, functional structure automatically develops, but functional functions of each divisions are different depending upon the nature of the product to be produced। देखो यहाँ पर ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में फंक्शनल स्ट्रक्चर जो यस्टरडे हमने देखा था अकॉर्डिंग टू द सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज ग्रुपिंग एक्सेट्रा, राइट, वो ऑटोमेटिकली डेवलप किया जाएगा, बट functions might be different according to the nature of the product produced in that particular division. The divisional head of each division is responsible for the profit or loss of his division, so that each division act as a profit center। सिंपल सी बात है कि जो डिविजनल हेड है उसको अलग से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट की गई है अपने खुद के डिवीजन के लिए। तो उस डिवीजन के लिए प्रॉफिट और लॉस के लिए वो खुद ही जिम्मेदार रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और इसीलिए ये इंडिविजुअल डिवीजन को प्रॉफिट सेंटर डिवीजन कंसिडर किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट्स? So let me discuss further in detail. Over here with example, uh, we are going to discuss about the structure, right? Say for example, a main company has managing director. Under the managing director, different departments or divisions are created. Say for example, cosmetics, garments, footwear, electronics, etc. Now each division or department will have the functional structure, right? Say for example, garment department or division of that particular industry or company will have different functions like human resource management, marketing management, research and development units, purchasing units, etc. Let me clear this example with a firm name like Reliance, right? Reliance Industries is a main company which will have different departments, राइट? जैसे कॉस्मेटिक्स की जगह पे रिलायंस ट्रेंड्स ले लेते हैं, रिलायंस गारमेंट्स या रिलायंस फ्रेश ले लेते हैं, रिलायंस फुटवेयर या रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर ये रिकनेक्ट कंसिडर किया जाता है। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल हायरार्की में प्रोडक्ट रेंज को आगे बढ़ाएं, राइट, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जियो जो है वो रिलायंस कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन में आ जाएगा। अगेन अगर आगे बढ़ा है तो रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स आ जाएगा, रिलायंस गैस आ जाएगा, एक्सेट्रा। अभी देखो हर एक डिवीजन के लिए वहां पर खुद से एक फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट किया जाएगा। जैसे गारमेंट्स की बात करें तो गारमेंट्स के लिए भी स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग से एक जो है वो फंक्शनल डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाएगा। गारमेंट्स के लिए जो मार्केटिंग टीम है वो अलग से क्रिएट की जाएगी, likewise, right? So
डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके अंडर में अगर हम कहना चाहे तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को कंसिडर कर सकते हैं, राइट. It might be helpful for the difference identification while you are going for write down the difference, right. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is the difference between the functional organizational structure and divisional organizational structure, so you can write these kind of points under that. Is it clear? अभी डिविजनल स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट्स नहीं है ना. So let me see about the advantages, merits or importance about the divisional structure. Number one, product specialization and development of various skills. Handling all aspects relating to a product line enhance various skills in the divisional head and thus makes him worthy of promotion to next higher level. वापस से ये चार्ट जो है हायरार्कियल चार्ट वो आपके सामने पुट करना चाहूंगा. देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि गारमेंट डिपार्टमेंट जो है, लेट मी हाईलाइट विथ कर्सर, गारमेंट डिपार्टमेंट का जो मैनेजर रहेगा, डिविजनल हेड रहेगा, वो ये सारी चीजों को देखेगा. किन किन चीजों को देखेगा? गारमेंट डिपार्टमेंट का जो डिविजनल हेड है, आई रिपीट, मैं यहाँ पर कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा फोकस कीजिए. गारमेंट डिपार्टमेंट का जो डिविजनल हेड है वो चारों फंक्शंस को देखेगा. सिर्फ एचआर एक्टिविटीज को नहीं देखेगा, मार्केटिंग को नहीं देखेगा, आर&डी को नहीं देखेगा, परचेसिंग को नहीं देखेगा, एक्सेट्रा. गारमेंट डिपार्टमेंट का डिविजनल हेड चारों एक्टिविटीज को, फंक्शंस को देखेगा. अभी क्या होगा ये देखो, हैंडलिंग ऑल एस्पेक्ट रिलेटिंग टू अ प्रोडक्ट लाइन, handling all aspects relating to a product line will enhance various skills in divisional head and thus makes him worthy of promotion to the next level. देखो इससे क्या होगा कि वो चारों एक्टिविटीज को देख रहा है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में उसकी मास्टरी आ जाएगी, वो सारे एस्पेक्ट्स को रिलेट करके हैंडल करेगा. तो अभी नेक्स्ट लेवल के लिए वो प्रमोट किया जा सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर या तो डायरेक्टर, राइट. यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट. तो आगे के प्रमोशन के लिए वो एलिजिबल हो सकता है. सो इट इज एडवांटेज कि जो डिविजनल हेड है वो सारे फंक्शनल एक्टिविटीज को कंसर्न करेगा, राइट. सेकंड थिंग, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट. Performance measurement of each division is easily possible since the divisional head are accountable for profits. देखो एक डिवीजन अलग से जब क्रिएट किया जाता है पर्टिकुलर कंपनी में, तो उस डिवीजन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिविजनल हेड को अलॉट किया जाएगा. टोटली ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट. तो अभी उसके प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, राइट. उस पर्टिकुलर डिवीजन में कितना प्रॉफिट हुआ है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, राइट. वहां पर कौन कौन सी चीजें परफॉर्म हो रही है, तो उसके परफॉर्मेंस के लिए मेजरमेंट करना इजी हो जाएगा बिकॉज सेपरेट डिवीजन हैज सेपरेट डिविजनल हेड and that particular separate divisional head will be the responsible for his unit, right. This further helps in fixing responsibilities and taking appropriate remedial actions in case of poor performance. अगर कुछ पुअर परफॉर्मेंस दिखता है तो उसके अगेंस्ट में रेमेडियल एक्शन के पार्ट में अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फिक्स की जा सकती है, राइट. बिकॉज डिविजनल हेड इज अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवीजन. अगर कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिल रहा है, राइट, या तो पुअर परफॉर्मेंस है, तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसके रेमेडियल पार्ट के लिए जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है तो इस डिविजनल स्ट्रक्चर के कारण हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन की प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं. सेकंड इंपॉर्टेंस क्लियर. थर्ड इंपॉर्टेंस, promotes flexibility and initiative. Each division act as an autonomous unit. देखो जो कीवर्ड है दैट इज autonomous unit.
Hence divisional structure promotes flexibility and quick decision making. देखो अभी एक ही पर्सन को एज अ डिविजनल हेड असाइन किया हुआ है. Now he is solely responsible and accountable to that particular division for which he is divisional head. अगर उनको कुछ डिसीजन लेना है तो उनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है. Quick decision he can take, right? As well as he will have the flexibility structure, right, to work accordingly. तो सिंपल चीज है कि पहले से ही बता दिया गया है कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है इट्स लाइक अ ऑटोनोमस यूनिट, राइट, और इसके कारण जो है वो क्विक डिसीजंस लिए जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज रहेगी, एक्सेट्रा. फोर्थ पॉइंट, facilitates expansion and growth. Under divisional structure, new divisions can be easily added, right? अगर मान लो कि गारमेंट डिवीजन हमने देखा, लेट मी गो जंप टू द अर्लियर स्लाइड. देखो यहाँ पर गारमेंट डिवीजन देखा, मैं इसको अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ. देखिए गारमेंट डिवीजन हमने देखा, तो गारमेंट डिवीजन में सब डिवीजन क्रिएट करना है, फर्दर डिवीजन क्रिएट करना है, इजीली कर सकते हैं. आस्क मी हाउ, राइट? अंडर गारमेंट डिवीजन मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे कर्सर से. अंडर गारमेंट डिवीजन वी कैन क्रिएट अगेन सब डिवीजन ऑफ गारमेंट डिवीजन लाइक मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर, एक्सेट्रा, राइट. और उसके लिए भी पर्टिकुलर अलग से डिवीजन क्रिएट करके वहां पर भी एक अलग से डिविजनल हेड अपॉइंट करके उसके अंदर भी ये चारों मैनेजरियल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं. Let me jump to this fourth one again. Under divisional structure, new divisions can be easily added. Right? वो आसानी से ऐड किए जा सकते हैं. Interrupting the working of other divisions. Thus, देखो उसके लिए कुछ अलग डिवीजन का इंटरप्शन नहीं होगा. अभी देखो वहां पर फुटवेयर डिवीजन भी था हायरार्कियल चार्ट में. तो अगर मैं मेंसवेयर या वुमेन्स वेयर या चिल्ड्रंस वेयर गारमेंट डिवीजन के अंडर में अलग से डिवीजन ऐड कर रहा हूं तो उससे फुटवेयर डिवीजन को कुछ कंसर्न नहीं है, वो कुछ इंटरप्ट नहीं हो रहा है. सिंपल. Thus, it facilitates growth and expansion of the enterprise, right? अगर फुटवेयर की भी बात करें तो उसमें भी वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए अलग से डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं. It is as simple as we discussed, right? So these are the four main merits, advantages, importance, etc. Whatever you say, right? Is all about the divisional structure. Let me discuss about the disadvantages or demerits or limitations of organizational structure of divisional structure. Like number one, conflict to allocation of funds. There may be conflict among different divisions over allocation of funds. Further, the division may also try to maximize their profit at the cost of the other division. देखो यहाँ पर जो चीज बताई गई है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल है. देखो मेरा खुद का अगर डिवीजन है, से फॉर एग्जांपल मैं गारमेंट डिवीजन का डिविजनल हेड हूँ, तो मेरी कोशिश क्या रहती है, मेरे डिवीजन को एक्सपांड करना, मेरे डिवीजन का प्रॉफिट बढ़ाना, मेरे डिवीजन का बजट इंप्रूव करना. अभी देखो ये क्या हो गया, दूसरे डिवीजन को निग्लेक्ट करके राइट मैं खुद के डिवीजन के बारे में सोचता हूँ. अभी देखो जो मेन कंपनी है जहां पर ये डिवीजन क्रिएट किए जाते हैं उसके लिए तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना कि वो फंड किसको रेज करे, राइट. देखो अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड डिवीजन है वहां पर ज्यादा फंडिंग करना चाहिए, दैट इज द रियलिटी. बट फिर भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है क्योंकि हर एक डिविजनल हेड जो है वो अपने खुद के डिवीजन के मैक्सिमाइजेशन के बारे में, राइट, उसके एक्सपांशन के बारे में सोचेगा. सो somehow it is a limitation of this structure. Second one, increase in cost. Similar type of activities performed in all division leads to duplication of work and increased expenditure. इसको मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. जैसे मान लो कि मेरा गारमेंट डिवीजन है और वहां पर मैंने 4 फंक्शनल एक्टिविटीज के लिए अलग से स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जैसे फिनांस, मार्केटिंग, एचआर, सेल्स, एक्सेट्रा, राइट. तो अभी मेरा जो गारमेंट डिवीजन है उसमें भी 4 जो है वो मैनेजरियल एक्टिविटीज के ग्रुपिंग को मैंने रखा है. अभी मान लो मेरे पास वाला जो फुटवेयर डिवीजन है मेरी ही कंपनी का, उसमें भी ये 4 फंक्शंस अलग से
जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे। जैसे फुटवेयर डिवीजन के लिए भी मार्केटिंग एक्टिविटीज रहेगी, उसके लिए अलग से स्ट्रक्चर, परचेज डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो देखो अगर एक कंपनी के ऐसे कई सारे डिवीजन है, जैसे गारमेंट डिवीजन, फुटवेयर डिवीजन, वेजिटेबल डिवीजन या ग्रोसरी या कॉस्मेटिक डिवीजन एक्सेट्रा, तो उनके अंडर में भी देखो ये सारे जो फंक्शंस है ना वो रिपीटेडली परफॉर्म किए जाएंगे। जैसे गारमेंट डिवीजन में भी मार्केटिंग है, परचेज है, फाइनेंस है, राइट, HR है। वैसे ही फुटवेयर डिवीजन में भी मार्केटिंग है, परचेज है, फाइनेंस है, HR है। तो अभी इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल बी रेज्ड, और इससे कॉस्ट इंक्रीज होगा। इससे बेटर है कि आप HR डिवीजन अलग से क्रिएट करो, राइट, जो है वो सारे अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, डिफरेंट डिवीजन के लिए रिक्रूटमेंट संभालेगा। फुटवेयर के लिए भी रिक्रूटमेंट करना है तो एक ही HR रहेगा। अभी गारमेंट डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करना है तो उसके लिए भी वही सेम एक HR रहेगा। ऐसा भी किया जा सकता है टू रिड्यूस द कॉस्ट, राइट, किया जा सकता है, राइट, इट अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बट अगर ऐसा नहीं होता है, सभी के लिए सेपरेट सेपरेट हम मैनेजरल फंक्शंस क्रिएट करते हैं, तो इससे ये होगा कि कॉस्ट इंक्रीज होगा, राइट। कोई भी डिवीजन है तो, डिपार्टमेंट है या कंपनी है तो उसका कॉस्ट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर्ड। देखो बहुत सिंपल बात है, जैसा टाइटल है वैसा ही उसका मीनिंग है। मैं खुद के जब डिवीजन के बारे में सोचता हूँ तो मैं सिर्फ गारमेंट डिवीजन के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सोचूंगा। आई विल बी लिस्ट कंसर्न रिगार्डिंग द organizational goals, right, वही चीज यहाँ पर है। Since the managers have authority to supervise all respective divisions, they may gain tremendous power, focus on their goals alone and ignore all else including even organizational interest। जैसे मैं खुद के गोल्स के लिए ही मोटिवेटेड हूँ तो मैं फुटवेयर के लिए लिस्ट कंसर्न हो जाऊंगा। चलो फुटवेयर की बात दूर की रही, मैं ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उनके जो गोल्स है उनके बारे में लिस्ट कंसर्न हो जाऊंगा। आई विल स्टार्टिंग इग्नोरिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट। सो इट इज गोइंग टू हैपन, ऐसा होता है। दैट्स व्हाई इट्स अ डीमेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डीमेरिट्स सारे क्लियर, टोटल 3 डीमेरिट्स है। चलो आगे की स्लाइड देखते हैं हम लोग। कहाँ पर ये सूटेबल है, डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पर अडॉप्ट करना चाहिए, कहाँ पर वो ज्यादा सूटेबल रहेगा, उसके लिए 2 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस which are concerned with the manufacturing of large variety of goods। देखो ऐसा होता है कि जहां पर लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होता है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे स्ट्रक्चर को, डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना सूटेबल रहेगा, क्योंकि वहां पर कई सारे गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। वेराइटी ऑफ गुड्स की जो रेंज है वो लार्जर है, राइट। अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो हमारे लिए सूटेबल रहेगा कि हम अलग से पर्टिकुलर सेपरेट डिवीजन क्रिएट कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट, an organization can also opt for such a structure when it wants to grow, want to employ more employees or want to create more departments। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ये 3 चीजों की जरूरत ज्यादा है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहता है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन मोर एम्प्लॉयज को एंगेज करना चाहता है, या तो फिर मोर डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना चाहता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी डिविजनल स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन है उसको अडॉप्ट करना ज्यादा सूटेबल रहेगा, राइट। तो आज गाइज हमने देखा टोटल डिविजनल स्ट्रक्चर, द सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट। वापस से आपको रिमाइंड करवा दूं, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर देयर। फर्स्ट वन हमने देखा yesterday, functional structure which is created with the similar nature of activities by grouping them। आज हमने जो देखा that is according to the divisional structure, और divisional structure में क्या होगा, this will be created according to the
प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स या तो फिर कंसिडरिंग द टाइप्स ऑफ कस्टमर्स वी हैव या तो जियोग्राफिकली एरिया के अकॉर्डिंगली हम इसको क्रिएट करते हैं राइट. So it is all about two main types of structure of organization. Hope so this all topic right is clear with you guys. Don't mess up these both of the structure into each other. Whenever case study is asked to you in the exams, try to identify the actual concept out of these two and accordingly try to write down your answers. Still, guys, you have any queries? We will discuss in our live session in MAC meeting of Nalanda Vidyalaya. Still, any doubts? You have my WhatsApp number, you have my call number. Please feel free to ask me because it's your 12th board, right? Do your best. Thank you, guys.